नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं टोक्यो, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। Punjab, often called the breadbasket of India, has long been the backbone of our nation's food security. But today we are reshaping that identity, moving from being just the genealogy of India to become one of its most vibrant industrial and innovation driven economies. Our vision is clear: to make Punjab prosperous again, to provide our youth with meaningful employment, and to create an environment where business with confidence and stability. In the last few years, we have witnessed a wave of positive change. Policy reforms, infrastructure upgrades, and transparent governance have begun to redefine how government and industry work together. Investors' confidence in Punjab is rising faster than ever before. And we are determined to ensure that this momentum leads to long-term prospect for all. We understand that for investors, the first question is always about stability and trust. Let me show you. Punjab offers both trust and stability. Our government stands on the pillars of the peace, policy, and predictable governance. We have created an ecosystem where decisions are rule-based, not individual-based. Law and order in the state is strong and dependable, and our admin functions as a partner to the business, not as a hurdle. We have a single window and single pen policy. Only single window and single pen also. Often we can see that a single window has many windows, but in Punjab, single window and single pen. So we have also completely reimagined that the way approvals and clearances are granted. Our fast track Punjab portal is one of the most advanced single window system in India. Every clearance, every approval from land to utilities can be applied and tracked online. As my minister said that we have granted that all approvals completed within 40 days. Maximum, that's maximum. Starts from 5 days. So in addition, under our Punjab Right to Business Act, micro, small and medium industries inside approved industrial parks receiving principal approval within 5 working days based on self-declaration, with a validity of 3.5 years. There's no red tape, no uncertainty, only speed, transparency, and accountability. Friends, Punjab's strengths go far behind governance. The state enjoys seamless connectivity to Delhi, the national capital, hardly 2.5 hour drive from national capital, rail link, road link and air link. And we have 30-minute flight from national capital. We have 6
airports. Two of them are international, Mohali and Amritsar, sir. Punjab is also a power surplus state, as my minister said. But our greatest asset is our people. Punjab has one of the most productive, skilled and globally minded workforce. तो टोक्यो से पंजाब के सीएम को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल रेमेन डेका ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और साइंस विशेषज्ञ आकांक्षा सत्यवंशी से मुलाकात की। आपको बता दें, आकांक्षा सत्यवंशी, जो भारत और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही हैं, ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उन्हें अपने कार्यों के बारे में बताया। राज्यपाल ने उन्हें राजकीय गमछा पहनाकर सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आकांक्षा के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के 16,000 से अधिक एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें 33 दिनों तक चले हड़ताल की सजा है, जिनमें उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। हड़ताल 18 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक चली थी, जिसमें राज्य भर के कर्मचारी शामिल थे। वहीं बलौदाबाजार जिले के 516 कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल रहे थे। हड़ताल समाप्त होने के बाद भी अक्टूबर और नवंबर माह का वेतन रोक लिया गया, जिससे कर्मचारियों को बच्चे की स्कूल की फीस, घर का किराया और ईएमआई भुगतान में कठिनाई हो रही है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और तत्काल समाधान की मांग की है। उन्होंने बर्खास्त 25 कर्मचारियों को बहाल करने, हड़ताल के 33 दिनों को सेवा अभिलेख में जोड़कर वेतन भुगतान और पहले घोषित 27% वेतन वृद्धि में से केवल 5% वृद्धि को लागू करने की मांग रखती है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक वेतन वृद्धि की भी जल्द घोषणा की मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वो पुनः आंदोलन पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। हड़ताल के बाद तो स्थिति बहुत दयनीय है और आर्थिक से के साथ साथ सामाजिक से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए तो सबसे ज़्यादा तंग है, क्योंकि किसी का ईएमआई है, किसी का बच्चे का फीस है, किसी का कर्ज है, किसी का परसेंटेज में लिए हैं, तो किसी का राशन नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो 25 कर्मचारी हैं उसकी बहाली का भी बहुत बड़ा समस्या, उसका भी मतलब परिवार में आर्थिक संकट जूझ रहे हैं, क्योंकि वो तो ड्यूटी ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको पेमेंट कहाँ से देगा 2 महीने का। तो सरकार को मतलब एक चीज़ समझना चाहिए कि हम जो 33 दिन तक हड़ताल किए, वो हड़ताल मतलब आप उस हड़ताल को आप आश्वासन के करके बंद कराए थे उस हड़ताल को, तो आप तो वेतन देने के लायक भी नहीं रखे हो हमको। हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और अभी पिछले 2 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं मिली है। हम लोगों ने अभी हमारी जो बहुत मांग थी, जिनको लेकर खासकर जो हमारी जो संविदा का जो है उसको नियमितीकरण करने के संबंध में हमने 33 दिन तक हड़ताल किए और उनके बाद से अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं आज। और एक हमारा मांग था जिसमें हमारे जो अभी आंदोलन में जो हमारे 25 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थी, जिनको सेवा से बर्खास्त किया गया है हड़ताल के बाद, उनको वापस सेवा में बहाल करने के लिए ये हम लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जिले के समस्त बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, जिसमें साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में जिले में 440 साइबर अपराधों के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 4 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया और कहा, पुलिस विभाग तब तक साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं हो सकता जब तक बैंक उनका सहयोग नहीं करेगा। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंक खाता खोलते समय दस्तावेजों की पूरी जांच करें और ट्रांजैक्शन के दौरान अगर किसी भी खाता धारक के अधिक ट्रांजैक्शन होती है तो गहन पूछताछ के बाद ही लेन देन करें। साथ ही अगर कोई खाता म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसकी सूचना तुरंत साइबर पुलिस को दी जाए।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। कबीरधाम जिले में डिजिटल शिक्षा को वनांचल क्षेत्रों तक विस्तार देने के प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोरला विकास खंड के 8 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ किया। इससे पहले कवर्धा, सहसपुर, लोहारा में भी स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की जा चुकी है। आपको बता दें, इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आधुनिक तकनीक, 3D एनिमेशन और ऑडियो वीडियो आधारित सामग्री छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाएगी। विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों में कठिन अवधारणाएं और अब एनिमेशन और इंटरैक्टिव माध्यमों से आसानी से समझाया जा सकेगा। उन्होंने लाइव डिजिटल बोर्ड पर पादप कोशिका की संरचना का 3D प्रदर्शन करते हुए छात्रों को इस तकनीक का पूरा लाभ उठाने की प्रेरणा दी। स्मार्ट क्लास शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुड़े सभी 8 स्कूली बच्चों से बातचीत कर उनके अनुभव सुने, जिनमें छात्रों ने बताया कि अब पढ़ाई अधिक रोचक और सरल हो गई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के मिरतूर गांव में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे स्वच्छ पखवाड़ा अभियान की अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें, 1 से 15 दिसंबर तक चलने वाली इस अभियान की शुरुआत सीआरपीएफ के 199 कैंप से हुई है, जहां जवानों के साथ स्कूल के बच्चे और गांव के युवा भी स्वच्छता जागरूकता रैली में शामिल हुए। झाड़ू और स्वच्छता संदेश वाली तस्वीरों के साथ निकली ये रैली पूरे गांव में उत्साह का माहौल लेकर चली। इस दौरान स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं और स्वच्छ भारत बनाना जैसे गूंजते नारों ने गांव में स्वच्छता का मजबूत संदेश पहुंचाया। आपको बता दें, रैली में शामिल सीआरपीएफ जवानों और बच्चों ने साफ कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की बुनियाद है। सीआरपीएफ कैंप के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल कचरा साफ करना नहीं बल्कि लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा करना है। आज हम डेल्टा 199 बटालियन कैंप से जो हम सीआरपीएफ के सदस्य स्वच्छ पखवाड़ा का रैली के लिए हम निकले। हमारा हायर ऑफिसर से हमको डायरेक्शन मिला है जो 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक हमें विभिन्न प्रकार का स्वच्छ भारत की अभियान चलाना है, आपका क्षेत्र में चलाना। इसका तहत आज का दिन हम रैली निकले। इसमें यही मकसद है, हमारा देश को स्वच्छता का आगे बढ़ाना है और लोगों को बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है। इसमें हमारा स्कूल का बच्चे, आंगनवाड़ी स्कूल का बालक बच्चे भी शामिल है, ये लोकल के गांव के युवा भी शामिल है और हम इन लोग का साथ में हम जितना हो सकते हमारा जो विलेज में जो चारों तरफ का साफ सफाई में हम योगदान देंगे। आज अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट में सोमवार को 5 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, जहां कलेक्टर दीपक सोनी ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने पेंशन अदायगी आदेश यानी पीपीओ की प्रतियां भी सौंपी। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभागीय सेवा, आमजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी की पहल के कारण अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवा अवधि में जमा राशि तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि पहले ये प्रक्रिया वर्षों तक लंबित रहती थी। कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल और जिला कोषालय अधिकारी सौम्या शर्मा भी उपस्थित रहे। नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुए अधीक्षक कार्यालय बलौदा बाजार के अधिकारी कर्मचारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार पुलिस ने आज शातिर चोर पवन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ भाटापार ग्रामीण थाने में 10 अपराध दर्ज थे और पहले भी न्यायालय द्वारा उसे जिला बदर की
सजा सुनाई जा चुकी है। जेल से छूटने के बाद भी पवन यादव बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा। रात में आरोपी माता देव वार्ड में घूमते पाए जाने पर मोहल्ले वालों ने अपनी सूझबूझ से पुलिस के समाधान सेल से उसकी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 और 35 ख के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग रेंज पुलिस के 2 तकनीकी नवाचारों को अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। आपको बता दें, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D ने त्रिनयन और सशक्त ऐप्स पर आधारित ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को भारत सरकार के आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया है। अब ये देश भर के पुलिसकर्मी इस स्मार्ट टूल से परिचित होकर उन्हें अपने काम पर लागू करेंगे। दुर्ग रेंज पुलिस द्वारा डेवलप की गई त्रिनयन और सशक्त ऐप को भारत सरकार के आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर जगह मिली है। भारत के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया गया है, जिसमें कि इन दोनों ऐप्स की यूटिलिटी और पुलिस की इसके लिए उपयोगिता दोनों के बारे में बताया गया है। यह करीब 11 मिनट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको कि विभिन्न पुलिस कर्मचारी अधिकारी इसको कर सकते हैं और इन ऐप्स की जो उपयोगिता है उसके बारे में सीख सकते हैं। ये दोनों ऐप्स हमने क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन के उपयोग से उद्देश्य से बनाई गई थी। त्रिनयन में हम CCTV के जो डेटाबेस है उसका उपयोग करते हैं, ताकि आसानी से घटना होने पर CCTV की फुटेज हम निकाल सकें। और इसी प्रकार जो सशक्त ऐप है उसका हम वाहन चोरी की रिकवरी के लिए उपयोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह ऐप भविष्य में भी हमारे अधिकारी कर्मचारियों को सहयोग करेगी और मैं पुनः तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक और हमारी पूरी टीम को जिन्होंने ये ऐप उपयोग की और इनको बनाया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जशपुर से है, जहां जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें, 2 पक्षों में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं SSP शशि मोहन सिंह ने बताया कि घटना में शामिल सभी आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए हैं और मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार ग्राम भट्टी कोना में शासकीय जमीन के कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। आरोप है कि देवनंदन यादव और उनका परिवार लाठी डंडे, पत्थर और कुल्हाड़ी से प्रार्थी पक्ष पर हमला करने पहुंचे थे। सज्जन नगेसिया और सुखनंदन यादव ये 2 पक्ष थे और झांपीदरा गांव में दोनों पक्षों के बीच में बलवा हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे से वार हुआ और उसमें 11 लोग एक तरफ से और 4 लोग एक तरफ से घायल हो गए थे। 4 लोगों को यहाँ से रिफर भी किया गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और अभी स्थिति नियंत्रण में है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। संबंधित धारा का अपराध कायम करके विवेचना में दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के भुवनेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अजीब घटना सामने आई, जहां 12वीं कक्षा के छात्र और शिक्षक रविवार को मैनपाट पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन पिकनिक से घर लौटने के बाद सोमवार को ना तो कोई शिक्षक विद्यालय पहुंचा और ना ही विद्यार्थी। इस पर जिला शिक्षक अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अचानक स्कूल का दौरा किया और घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से पिकनिक के बाद अनुपस्थिति का कारण पूछा। जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। बच्चों को हमने नोटिस इशू किया था स्कूल आने को, लेकिन कुछ ही बच्चे आए और ज़्यादातर बच्चे देखिए नहीं आ पाए। बाकी जो लेक्चरर हैं, मैं उनके बारे में जो है उनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। उनको नोटिस मैं इशू करूँगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उनको हम नोटिस इशू करेंगे कि उनके द्वारा इस तरीके से लापरवाही क्यों की गई। आज जैसे ही मुझे सूचना मिली है कि सेजेज भुवनेश्वरपुर में 12th क्लास के बच्चे सारे बच्चे अनुपस्थित हैं और कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं भी आकस्मिक अवकाश का आवेदन लगा के अनुपस्थित रहीं। तत्काल मैं स्वयं भी इस विद्यालय का आज आकस्मिक निरीक्षण किया। मेरे साथ विकासखंड रामानुज नगर के BO लकड़ा जी भी उपस्थित हैं, VRC भी उपस्थित हैं।
और मैं यहाँ पे आके देखा तो बात सही थी कि 12th के बच्चे पूरे आज नहीं आए हुए हैं, बाकी कक्षाओं के बच्चे आए हुए हैं। जानकारी ये मिली कि 12th के सारे बच्चे पिकनिक के लिए कल गए हुए थे, इसलिए आज वो स्कूल में उपस्थित नहीं हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में चलाए गए ऑपरेशन में पुलिस ने हथियार, विस्फोटक, डेटोनेटर, टिफिन बम और प्रेशर बम बनाने का सामान बरामद किया है। सभी सामग्री को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज और जब्त किया गया है। बस्तर आईजी के अनुसार नक्सलियों की योजना सुरक्षा बल और नागरिकों को निशाना बनाने की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से साजिश नाकाम रही। स्थानीय ग्रामीणों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास मजबूत होगा।